Hello, students. My voice is audible? Yes or no? Hello. Okay. Today we are going to cover API development with the help of Express.js, right? And Express.js is the library of Node.js. So our backend is MongoDB and frontend is our React.js. Node.js is our backend and one library is Express.js and frontend is our React.js. And we are going to develop API in Express or and MongoDB. So first of all, we start our Mongo, right? So here we can start MongoDB, MongoD, then enter. Now our server backend is started. It means Mongo Compass is running now. Okay. Now I can minimize. Now I can start Mongo Compass. Now parallelly we are creating one more fresh application in Visual Studio Code. Okay, and here I am going to take this Mandvi underscore demo. So here we are creating two folder. One is server and second is front end. Last time we already created. Now it is a server. So we are open one new terminal here. There are many type of terminal: PowerShell terminal, CMD terminal, Git bash. I am going to use Git bash terminal. Okay. First terminal is used for server. Here I am doing ls. Ls means front end and server. So here I am entering in server folder. Okay. Now second is used for our front end. It means it is our client side. So ls cd front end. Okay. And ls. So I don't want this folder. So I am delete remove rd. Okay, remove directory server okay. See now, 1 minute. Our application is in this folder, right? We are creating one server folder and second is front end folder. Okay, I don't want this folder. Okay, inside the server, so I am removing this one. तो हमने क्या किया, दो फोल्डर पहले क्रिएट किया और बैकएंड में हमने MongoDB स्टार्ट कर दिया. Mongo Compass is running. Now this is our URI, MongoDB : this is our connection string, right? It is a connection. When you are doing a PHP work, that time you need connection with connection for database. So that two things we require: connection name and database name. Okay. Okay, now student, we are enter in here server. Okay, so here npm init, it is our first step, right? Npm init, it means it is create one JSON file inside the server. Okay, yes, server, we are not giving any server name, so it is a server. Enter, no description, enter, command, repository, okay, keywords, author, everything are blank. Okay, so one JSON is created in server folder. Yes. Okay, one file is created here. Okay,
So it is our first step. Next one is npm install express and mongoose for MongoDB and express for our API development. Now enter. So I have some ready-made code here. So I already created small code. So in server, okay, our two application are created, right? Two library express and mongo is installed. Now we can take one file, its name is index.js. okay, index.js. Here I can put all the code, entire code here. See here, one library, one is the express required express, second is mongoose, right? App express, and this is not required right now. Okay, this is our connection string, right? I put this connection string and give one database, right? Student. I already created one student database here. Okay, student, this is our database. Okay, this student is already created here. Okay, now we can check our server is running or not. Control S, and how to run this server? Node index.js. हम कैसे रन कर सकते हैं सर्वर? नोड इंडेक्स डॉट सर्वर एंड एंटर. ओके, उसका पोर्ट नंबर जो है हमने जो यहाँ पे पास किया है 3001. तो हम लोग ब्राउज़र में जाएंगे. ब्राउज़र में यहाँ पे लोकल होस्ट 001, राइट. ओके, तो आवर सर्वर इज रनिंग नाउ. कैन नॉट गेट मेथड. तो यहाँ पे पहले क्या चाहिए? गेट मेथड चाहिए. तो मैंने थोड़ा कोड पहले से रेडी किया है जिससे की वजह से हमें टाइम मिले, राइट. यहाँ पे मैंने एक छोटा सा गेट एपीआई हम लोग क्रिएट करेंगे. गेट एपीआई कॉपी. और गेट एपीआई कैसे बनेगी इसके अंदर वो यहाँ पे देखते हैं. गेट, राइट. गेट के अंदर अभी एसिंक मॉडल, राइट. अब यहाँ पे एक्सप्रेस JS नोड JS, कुछ ऐसा एग्जांपल आप ढूंढो, राइट. और बेसिक हेलो वर्ल्ड की आपको एप्लीकेशन मिलेगी यहाँ पे एक्सप्रेस में. तो कैसे आपको यूज़ करना है, राइट. स्मॉल यहाँ पे सेंड. तो यहाँ पे मैं एक लाइन जो लिखी है ये वाले हेलो. ओके, सिंपल मैं यहाँ पे उसको क्या करूँगा? कॉपी पेस्ट करूँगा. आई एम ट्रंकेटिंग दिस थिंग and just send. Okay, now again I need to restart my server. Okay, सर्वर कैसे रिस्टार्ट करना है ये थोड़ा सा भी चेंज करो, सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ेगा. अभी नेक्स्ट करोगे यहाँ पे अपने टर्मिनल पे आ जाओ, राइट. चेक करो हेलो वर्ल्ड. तो हमारी गेट एपीआई सक्सेसफुली क्रिएटेड है. ओके, हेलो गेट एपीआई. अभी हम लोग क्या करेंगे? एक स्कीमा क्रिएट करेंगे. अभी हमें मोंगोडीबी के साथ कम्युनिकेट करना है, राइट. हमारी एक गेट एपीआई और हमारा सर्वर हमें पता चल गया कि वो सक्सेसफुली रन हो रहा है. ओके, नाउ
सर्वर के अंदर ही हमें एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा, उसका नाम देंगे हम लोग मॉडल्स, राइट। वी कैन गिव नेम ऑफ मॉडल। नाउ इनसाइड दिस मॉडल वी आर क्रिएटिंग वन यूज़र, राइट। ओके, यूज़र, और हम लोग क्रिएट करते हैं कुछ नया फाइल, एक क्रिएट करते हैं स्टूडेंट डॉट जेएस। ओके, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग क्रिएट करेंगे, राइट। स्टूडेंट, उसके अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे, एंटर। ओके, स्टूडेंट के अंदर हमें क्या करना है, स्कीमा क्रिएट करनी पड़ेगी। स्कीमा मैंने ऑलरेडी बना के रखा है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा, आपको समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? यस और नो? यस और नो? यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोंगोस को इंपोर्ट करने के बाद मोंगो लाइब्रेरी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। उसके बाद स्कीमा हम लोग किस बना रहा है, किसकी, मैंने पहले फैकल्टी का टेस्ट किया था, यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स बना रहा हूँ। कौन सा? स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी एक स्कीमा रेडी है, तो हम लोग चेक करेंगे। आई ड्रॉप द कलेक्शन। ओके, फैकल्टीज, ड्रॉप द कलेक्शन। ओके, यहाँ पे एक कलेक्शन मैंने ड्रॉप किया। सो वी आर क्रिएटिंग हियर फैकल्टी ओनली, सो रीनेम फैकल्टी। ओके, फैकल्टी का ही बना लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे नाम चेंज नहीं करना पड़ेगा, फैकल्टी। फैकल्टी स्कीमा, यहाँ पे स्कीमा कांस्टेंट फैकल्टी स्कीमा इक्वल टू न्यू मोंगोस। मोंगोस हमारा ये वेरिएबल है, न्यू मोंगोस डॉट स्कीमा, स्कीमा करके है। उसके अंदर फैकल्टी नेम, और फैकल्टी के लिए टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है कि नहीं है, ट्रू। एक जेसन बना रहे हैं हम लोग, उसके अंदर सैलरी टाइप कोलन नंबर रिक्वायर्ड ट्रू। ओके, यहाँ पे कांस्टेंट फैकल्टी इक्वल टू मोंगो मोंगोस डॉट मॉडल, उसके अंदर हम लोग नाम देंगे। ये नाम कहाँ पे यूज़ होगा, यहाँ पे, ये जगह पे हमारा, मैंने मोंगोस कलेक्शन डिलीट किया है इसके अंदर, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट, आर यू विथ मी? हेलो, आपको समझ में आ रहा है? यस और नो चैट बॉक्स में लिखना। यहाँ पे फैकल्टी, और यहाँ पे मैंने स्कीमा पास किया है। यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू फैकल्टी। ओके, नाउ सेव। सर, हाँ थोड़ी स्पीड कम करो। हाँ, ठीक है। तो पहले हमने क्या क्रिएट किया था, इंडेक्स फाइल। इंडेक्स फाइल से पहले हमने क्या किया था, ये जेसन सिंपल क्रिएट किया था। जेसन के अंदर ये सब है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये नेम सर्वर, राइट, मेन इंडेक्स। ओके, ये सब लाइब्रेरी ऑटोमेटिक, यहाँ पे हमने दो लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी, एक्सप्रेस और मोंगोस। ओके, सो यहाँ पे वो डिपेंडेंसी यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें। और इंडेक्स फाइल के अंदर हमें इंडेक्स डॉट जेएस, राइट, तो कांस्टेंट और मोंगोस ए ऐप यहाँ पे हमें दिख रहा है। ओके, हमारा डेटाबेस का नाम यहाँ पे db_student है। ओके, यहाँ पे गेट एपीआई है फर्स्ट, तो गेट एपीआई में हमने सिंपल अभी किया है, राइट, कोडिंग हेलो प्रिंट करने के लिए। बाद में हम लोग क्या करेंगे, गेट एपीआई यानी मोंगोडीबी में से डेटा लाएंगे, डेटा पुट करेंगे, डेटा ऐड करेंगे, सेव करेंगे, राइट, और डिलीट करेंगे। तो ये हमारा पहला इंडेक्स फाइल रेडी हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, फैकल्टी का एक स्कीमा बनाया, राइट, इसमें दो ही कॉलम है। ये स्कीमा हम लोग डेटाबेस के अंदर ऑटोमेटिक ये वहाँ पे डंप हो जाएगी, ये सब नाम के साथ, राइट। ओके, तो ये हमारा बेसिक स्कीमा रेडी हो गया। ओके, हमें वहाँ पे मैन्युअली क्रिएट नहीं करना है। तो हमारा इतना पार्ट रेडी हुआ। मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, तो इतना चेंज हुआ है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, गेट के अंदर डेटा हम लोग फैकल्टी का डेटा फाइंड करेंगे। अभी डेटा कुछ है नहीं है, तो दो एपीआई बनाएंगे, एक तो गेट एपीआई और सेकंड हम बनाएंगे पोस्ट एपीआई।
ओके। पोस्ट एपीआई भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, कॉपी, और उसके नीचे पोस्ट एपीआई। तो पहले हम लोग पोस्ट एपीआई यहाँ पे इंडेक्स फाइल के अंदर हमें पोस्ट एपीआई, पोस्ट यानी डेटा ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऐड अंडरस्कोर फैकल्टी एसिंक इन द स्क्वायर राउंड ब्रैकेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड एरो ऑपरेटर एंड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। ये कर्ली ब्रैकेट देखो, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, उसके अंदर स्टेटिक डेटा स्टोर कर रहा हूँ मैं, राइट। कॉन्स्ट फैकल्टी इज इक्वल टू न्यू मॉडल, तो यहाँ पे मॉडल चाहिए, राइट। तो मॉडल को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये फोल्डर के अंदर मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट इंपोर्ट कांस्टेंट, यहाँ पे मेरा मॉडल इंपोर्ट हो गया। फैकल्टी इक्वल टू रिक्वायर्स डॉट मॉडल, मॉडल फैकल्टी का जो है वो हमने यहाँ पे एक मॉडल नाम के वेरिएबल के अंदर ले लिया। तो यहाँ पे मॉडल फैकल्टी इक्वल टू न्यू मॉडल, उसके अंदर जो भी हमने स्कीमा बनाई उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी, उस वो वैल्यू से हम लोग डेटा सेव करेंगे। अभी नीचे मैंने क्या बनाया, ट्राई कैच, ट्राई और कैच। ट्राई के अंदर लेट रिकॉर्ड इज इक्वल टू, जब हम लोग ए सिंक लिखते हैं ना उसी टाइम हमें अवेट, अवेट जब लिखते हैं तो ए सिंक लिखना कंपलसरी है, ए सिंक लिखते हैं तो अवेट लिखना कंपलसरी है, राइट। वो बैकएंड में सर्वर रिस्पॉन्स लेता है, इसीलिए ये लिखना पड़ रहा है। फैकल्टी डॉट सेव, यहाँ पे फैकल्टी, ये जो हमारी फैकल्टी है उसके अंदर हमने सेव मेथड और इंसर्ट मेथड से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी यहाँ पे यूज़ कर। ये जो कमांड है वो मोंगोडीबी का कमांड है, फैकल्टी डॉट सेव, फैकल्टी सेव हो जाएगा, उसके बाद रिस्पॉन्स मिलेगा, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक देखो एरर आएगी तो एरर लॉग में एरर बताएगा हमें। और एक आपको ये टेस्ट करना है, हमें डेटा टेस्ट करना कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ, राइट। तो उसके लिए हम एक लाइब्रेरी आती है पोस्टमैन, पोस्टमैन से ट्राई कर सकते हो या आप थंडर क्लाइंट यूज़ कर सकते हो। टू टाइप ऑफ क्लाइंट होता है, थंडर क्लाइंट, मैं अभी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ थंडर क्लाइंट, और आप यूज़ कर सकते हो पोस्टमैन भी यूज़ कर सकते हो, थंडर क्लाइंट भी यूज़ कर सकते हो, राइट। मैं आपको ये पहले थंडर क्लाइंट में बता रहा हूँ। तो थंडर क्लाइंट क्या है, एक एपीआई टेस्ट करने के लिए थंडर क्लाइंट, जब आपका फ्रंट एंड नहीं है, फ्रंट एंड की यूआई रेडी नहीं है, आपको टेस्ट करना है एपीआई को, तब ये कंपनी में क्या होता है, एपीआई कोई और लिखता है, फ्रंट एंड कोई अलग डेवलप करता है। तो यहाँ पे ऐसा ही मैं आपको सिनारियो बता रहा हूँ कि मैं एपीआई डेवलप कर रहा हूँ, फ्रंट एंड कोई अलग डेवलप कर रहा है, फ्रंट एंड को मुझे सिर्फ जेसन ही डेटा देना है। तो उस टाइम ये हमें थंडर क्लाइंट या पोस्टमैन या स्वैगर वो सब में हमें डेटा टेस्ट करना पड़ेगा, एपीआई टेस्ट करनी पड़ेगी कि हमारी एपीआई प्रॉपर वर्क कर रही है। तो मैं अभी थंडर क्लाइंट यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो क्लिक करने से थंडर क्लाइंट को इंस्टॉल करने के लिए आपको ये विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक्सटेंशन में जाना है और एक्सटेंशन में जाके थंडर क्लाइंट लिखना है, थंडर client. Yes, this session is already recording, right? So I will provide you that YouTube link. Okay, this is the Thunder client I already installed. Thunder client is used for lightweight REST API client for Visual Studio Code. Okay, so here I already use this Thunder client. मैं यहाँ पे Thunder client, हमारी जो API है, जो मैंने अभी API क्रिएट की है ये वाली, राइट। इसके साथ मुझे यहाँ पे ये रिक्वेस्ट के अंदर हमारी जो एपीआई है उसका जो लिंक है, मेन लिंक ये वाला है, राइट। और यहाँ से भी हम लोग करेंगे, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा ये ऐड फैकल्टी, तो यहाँ पे डेटा ऐड हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली देखो यहाँ पे कैन नॉट गेट ऐड, लेकिन बैकएंड में डेटा वो एप्लीकेशन हमारी यूज़ हुई है, तो डेटा तो डेटाबेस में गिरेंगे। देखो अभी मैंने रिफ्रेश किया लेकिन कुछ आ नहीं रहा, यानी एपीआई कॉल नहीं हुई हमारी एपीआई। 1 मिनट,
एक बार रिस्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कोड लिखा, बाद में सर्वर रिस्टार्ट नहीं किया, वापस सर्वर रिस्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पे पोस्ट की एपीआई को हमें चेक करने के लिए ऑलवेज यूज़ एनी क्लाइंट, राइट, लाइक थंडर क्लाइंट, पोस्टमैन, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, कुछ रिफ्रेश से कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है, एरर जनरेट करके बता रहा है। मैं चेक करूँ कि डेटा कुछ क्रिएट हुआ है कि नहीं क्रिएट हुआ है। हाँ, एक कलेक्शन क्रिएट हुआ हमारा, देखो यहाँ पे एक फैकल्टी का कलेक्शन हुआ। मैंने 3-4 बार क्लिक किया है, 3-4 बार ये क्लिक किया तो एक कलेक्शन क्रिएट करके दिया मुझे, लेकिन डेटा ऐड नहीं हुआ। यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट करके दिया। ओके, अभी डेटा ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी कोई क्लाइंट एपीआई या फ्रंट एंड से डेटा को यूज़ करना पड़ेगा। उस टाइम मुझे ये एपीआई जो हमने अभी ब्राउज़र में लिखी है, ओके, तो वो ब्राउज़र की यूआरआई को हमें यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो ये हमारी बेस यूआरएल है और उसके साथ हमारा राउट है। राउट किसको बोलते हैं, राउट, इसको ऐड जो लिखा है ना, ऐड फैकल्टी, उसको हम लोग राउट बोलेंगे, ये हमारा राउट है, राइट। तो यहाँ पे अभी मैं सेंड बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू हो गए बताएगी, देखो इंडेक्स सर्वर के अंदर ऐड फैकल्टी, राइट, मोंगोस फैकल्टीज, राइट, फैकल्टी मॉडल, यहाँ पे फैकल्टी राम न्यू सेव। ओके, इसके अंदर हमें गेट एपीआई भी हम लोग पास करेंगे। गेट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, ओके, फैकल्टी मॉडल फाइंड, जितनी भी वैल्यू है, फाइंड से क्या होता है, ऑल वैल्यू, इसमें चाहिए जेसन रिटर्न चाहिए। ओके, इसके यहाँ पे हम लोग स्लैश, हमारा लिस्ट है, देखो ब्लैंक आ रहा है, हमारी गेट एपीआई तो वर्क कर रही है लेकिन डेटा कैसा आ रहा है, ब्लैंक। ऐड अंडरस्कोर फैकल्टी, एंटर, अभी वर्क नहीं कर रहा है। ओके, तो ये हमारा एक, डायरेक्टली हम लोग टेस्ट नहीं कर रहे, मैं ये बताने के लिए आपको बोल रहा हूँ। ओके, थंडर क्लाइंट में जाओ, यहाँ पे तो पहले ऐड फैकल्टी एसिंग, यहाँ पे मैंने फैकल्टी जो नाम दिया था, यहाँ पे फैकल्टी मॉड्यूल के अंदर फैकल्टी नेम, फैकल्टी सैलरी, ये मैंने यहाँ पे पास किया फैकल्टी, इसकी सैलरी, इसके नीचे अवे फैकल्टी डॉट सेव, रिटर्न सेंड। ओके, एवरीथिंग इज ओके नाउ। एक बार और सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, अभी ट्राई करते हैं यहाँ पे डेटा। ओके, अभी डेटा मंगोस फैकल्टी इंस्पेक्ट, ये हमारा एग्जीक्यूट हुआ, इसीलिए बैकएंड में वो डेटा बता रहा है। अभी हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ से, फ्रंट एंड में क्या है, मॉडल है इज इक्वल टू न्यू क्रिएट सेव। डेटा हमारा सेव हुआ, देखो ऐड फैकल्टी, यहाँ पे फैकल्टी नेम, फैकल्टी सैलरी और एक हमारा ऑटोमेटिक आईडी जनरेट हुआ है यहाँ पे। तो हमारा जो स्टेटस है 200 एंड ओके, राइट, कितना टाइम लिया, 41 मिली सेकंड, 84 बाइट्स। तो हम लोग चेक करते हैं हमारा डेटा एपीआई के थ्रू ऐड हुआ कि नहीं हुआ।
तो यस, हमारा डेटा ऐड हो गया। तो हमारी पोस्ट एपीआई हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। अभी हमें गेट एपीआई से डेटा चेक करना है, राइट। सिंपल डेटा चेक करना है कि डेटा आया है कि नहीं आया है। ओके, हम लोग चेक करेंगे। तो डेटा हमारा गेट एपीआई, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा गेट एपीआई। यहाँ पे क्लिक करो तो हमारा डेटा दिख रहा है। ओके, तो डेटा यहाँ पे फ्रंट एंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखेंगे। यहाँ पे एंटर, तो हमारा डेटा यहाँ पे वैल्यू भी आ रही है फ्रंट एंड में हमारा, यानी ये हमारी एपीआई डिस्प्ले हो रही है। और एक डेटा डाल के देखते हैं, राइट। हम लोग चेंज करेंगे और एक डेटा चेंज करेंगे। राम की जगह पे हमें अपने स्टूडेंट, आपके स्टूडेंट में से किसी का नाम लेते हैं, राइट, आयुष। ओके, आयुष चौधरी और मित्तल। ओके, फर्स्ट हम वी आर एडिंग आयुष नेम, आयुष, राइट। उसका जो डेवलपर की सैलरी है 1 लाख। ओके, सेव, और हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे डेटा। हाँ, यहाँ पे गेट की जगह पे यहाँ पे पोस्ट लिखना पड़ेगा, राइट। ऐड करेंगे तो हमारी पोस्ट सेव नहीं किया है, सॉरी। हमारा सर्वर स्टार्ट, कंपलसरी सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारा रिकॉर्ड 2 बार ऐड हो गया। ओके, दूसरे यहाँ पे आयुष का डेटा आ गया, तो हमारे पास 3 रिकॉर्ड आ गए बैक। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो 3 रिकॉर्ड हो गए, देखो 1 2 3। ओके, तो ये हमारी एपीआई क्रिएट हो रही है। दिस इज, मैंने यहाँ पे है ना, ये जेसन फॉर्म डिस्प्ले करने के लिए मैंने सब ऐड किया हुआ है यहाँ पे एक्सटेंशन। ओके, जेसन डेटा को ऐड करने के लिए तो ये मैंने सब एक्सटेंशन ऐड किए हैं, राइट। तो एक्सटेंशन आपको देखना है तो मैंने जेसन व्यू एक एक्सटेंशन ऐड किया है, इसीलिए ऐसे दिख रहा है। अभी मैं एक्सटेंशन को ये अनइंस्टॉल कर दूँ, राइट, तो ये ऐसे नहीं दिखेगा, अलग तरह से डेटा दिख रहेगा। ओके, तो हमारी ये 2 एपीआई हमने टेस्ट की। कौन सी एपीआई? 2 तरह की। अभी हम लोग नेक्स्ट एपीआई पे वर्क करेंगे। नेक्स्ट मीन्स एपीआई हमारे गेट और पोस्ट की एपीआई कंप्लीट हुई। अभी हम लोग जाएंगे अपडेट क्वेरी। तो अभी हमारे पास एक रिकॉर्ड अननेसेसरी ऐड हो गया, उसको हम लोग अपडेट करेंगे, राइट। वहाँ पे राम का जो वैल्यू है सेकंड, ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू है, ये 2 डुप्लीकेट वैल्यू है, तो हम लोग उसकी वैल्यू चेंज करेंगे। उसके लिए हम लोग अपडेट क्वेरी फायर करेंगे। तो अपडेट एपीआई यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? एक अपडेट एपीआई, राइट। तो अपडेट एपीआई को लिखने के लिए मैं यहाँ पे फैकल्टी ये क्वेरी लिख रहा हूँ। यहाँ पे पुट ऐप डॉट पुट, यहाँ पे अपडेट फैकल्टी एसिंग रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स एरो ऑपरेटर कर्ली ब्रैकेट ट्राई कैच के अंदर लेट या कांस्टेंट आप लिख सकते हो। लेट भी लिख सकते हो, कांस्टेंट भी लिख सकते हो। आप देख लेना लेट और कांस्टेंट में डिफरेंस है, लेकिन ये यूट्यूब पे चेक कर लेना। यहाँ पे क्यू मीन्स क्वेरी इक्वल टू अवेट। जब हम लोग एसिंक लिखते हैं तो अवेट कंपलसरी, अवेट लिखते हैं तो एसिंक लिखना कंपलसरी है, वो ध्यान में रखना। यहाँ पे मैंने मॉडल जो अपना ऊपर है वो मॉडल डॉट अपडेट वन यानी हमारी मोंगोडीबी की क्वेरी है। यहाँ पे हमारा जो एपीआई है, फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड में मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। ओके, ये वाली जो वैल्यू है, ओके, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये जो आईडी है वो चेंज किया, वहाँ पे मुझे मित्तल नाम आना चाहिए, राम की जगह पे मित्तल आना चाहिए। ओके, और मित्तल और सैलरी भी चेंज करनी है तो आप सैलरी फैकल्टी सैलरी कोलन डबल कोटेशन नहीं, हमने नंबर लिया है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20,000। ओके, और कोमा। ओके, डन, सेव करो। और यहाँ पे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ये जो रिस्पॉन्स है यहाँ से रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स कहाँ से आया? फ्रंट एंड से आएगा रिस्पॉन्स। और सेंड क्वेरी, ये क्वेरी के अंदर वो वैल्यू। अब अभी हमने मैपिंग नहीं किया है फ्रंट एंड को, सिर्फ हम लोग एपीआई डेवलपमेंट सीख रहे हैं, राइट। यहाँ पे एरर और ट्राई कैच लिखना कंपलसरी है, लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, लेकिन मेरी हैबिट है मैं जब भी वर्क कर रहा हूँ तो ट्राई कैच में ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि ट्राई कैच से मुझे पता चलेगा कि एरर है और वो गुड प्रोग्रामिंग है, राइट। तो अभी मैंने एक कोड ऐड किया तो मुझे वो सर्वर वापस रिस्टार्ट करना पड़ेगा। हमारी ये पुट मेथड है,
समझो यहाँ पे पुट मेथड है। ओके, जब मैं ये रन करूँगा तो ये डेटा के ऊपर, राइट, इन फ्यूचर वो डेटा यहाँ से क्या, कौन सा डेटा यहाँ आएगा, फ्रंट एंड से आएगा, और हम लोग ये मैन्युअली चेंज नहीं करेंगे, ये हम लोग फ्रंट एंड से चेंज करवाएंगे। ये हम लोग नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा। अभी आज के दिन में आपको एपीआई कैसे डेवलप, मैं दो एपीआई अलग अलग, एक फैकल्टी और दूसरा कोई दूसरा टेबल लेके मैं बताऊंगा। ओके, अपडेट, तो मैं इसको अंडर क्लाइंट के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पे ऐड की जगह पे, सॉरी, ये अपडेट वाला ये जो है वो राउट ले लेते हैं, पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे कैट की जगह पे पुट, मुझे डेटा पुट करना है। ओके, तो सेंड डेटा, यहाँ पे देखो मॉडिफाई हो गया। ओके, मॉडिफाई काउंट :1 एक्नोलेज ट्रू, राइट, यहाँ पे कुछ भी एरर होता तो हमें एरर मिलता। ओके, मैंने ऑफसेट या कुछ करवाया नहीं है, मैच काउंट 1 हुआ है, राइट। ओके, तो हम लोग चेक करेंगे, फ्रंट एंड में जाएंगे, फ्रंट एंड में जाएंगे, यहाँ पे ही चेक करेंगे, ये डेटा बैक एंड से ही आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो हमारा यहाँ पे राम था, उसकी जगह पे मित्तल हो गया, राइट। ओके, तो अगेन अगेन वी कैन चेक सेम वैल्यू, राइट। मैं मित्तल की जगह पे मीना लिखता हूँ, राइट, और चेक कर रहा हूँ कि करेक्ट है या नहीं है। ओके, सेंड, अगेन वी नीड टू चेक ऑन ब्राउज़र, हियर सी क्या हुआ। अच्छा, मैंने चेंज किया लेकिन क्या हुआ प्रॉब्लम, सर्वर रिस्टार्ट करना भूल गया। अगेन यू नीड टू स्टार्ट सर्वर, राइट, यार चेक करो, यहाँ पे मीनू आना चाहिए। ओके, मीना, यस मीना आ गया, तो हमारा डेटा प्रॉपरली चेंज हो रहा है, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, कोई वैल्यू डिलीट करेंगे, राइट। हमारा कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कोई भी वेबसाइट वेब डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट का कॉन्सेप्ट रहता है, राइट। तो ये हमारा अपडेट अभी डिलीट का हम लोग करेंगे। पुट, पुट से अपडेट हुआ, पोस्ट से हमारा पोस्ट हुआ यानी डेटा ऐड हुआ, गेट से हम डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं, ऑल डेटा लिस्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। हम गेट वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक और हम लोग ट्राई कर सकते हैं, कोमा, राइट, यहाँ पे गेट 1, राइट, यहाँ पे डेटा 1, सो हमें ये वाली ही वैल्यू चाहिए, गेट वन में ये मैं कॉपी करूँ, ओके। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एपीआई के अंदर, यानी आईडी वाइज गेट आईडी, हम लोग आईडी वाइज भी डेटा कैसे लेना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आईडी वाइज लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोलन आईडी पास करनी पड़ेगी, राइट, कोलन आईडी। तो मैं यहाँ पे कोलन आईडी लिखूँगा, राइट, दिस इज वर्क, राइट और नॉट, वी कैन चेक, कोलन आईडी, कोलन आईडी, यहाँ पे लिखते हैं गेट एपीआई बाय आईडी। तो हम लोग ने आईडी तो पास कर दिया है, यहाँ पे देखते हैं क्वेरी प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हमें न्यू रिक्वेस्ट में जाना है, यहाँ पे हमारा आईडी लिखना है, कौन सी आईडी, ये वाली आईडी, क्योंकि ये आईडी मैच करेगा उसके अंदर। ओके, नाउ ओके, पुट लिखा है, यहाँ पे मुझे गेट लिखना पड़ेगा।
id find model find, हमें ये आईडी पास करनी पड़ेगी, आईडी। ओके, छोटा सा चेंज हुआ है, सर्वर अगेन रन करो। आईडी इज नॉट डिफाइंड, ये आईडी है, यहाँ पे लिया है हमने, पैरामीटर से ये आईडी आनी चाहिए। ओके, ये बाद में देखते हैं, पहले हम लोग डिलीट वाला देख लेते हैं, 1 मिनट, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, डिलीट, तो डिलीट के लिए हम लोग क्या करेंगे, आईडी वाइज डिलीट करेंगे। ऐप डॉट डिलीट, डिलीट अंडरस्कोर फैकल्टी, राइट, डिलीट 1, यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे हमने आईडी पास किया, जो भी आईडी पास होगा वो डेटा हमें डिलीट होके मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये मीनू वाला डेटा हमें डिलीट करना है, तो उसकी मैंने यहाँ पे आईडी पास कर देता हूँ। ये सब पूरा फ्रंट एंड से होगा बाद में, पहले ये हम लोग देख रहे हैं थंडर क्लाइंट, और मैं पोस्टमैन में भी बता रहा हूँ, पोस्टमैन में भी ये हो जाएगा, उसके बाद पोस्टमैन में बताऊँगा। राइट, ये हमारा डिलीट है, डिलीट ऐप डॉट डिलीट ब्राउन ब्रैकेट, यहाँ पे हम लोग ये राउट पास करेंगे, राउट लिखना है, ये क्या है, राउटिंग है। राइट, कौन सा राउट पे मेरी एपीआई जाएगी, जब इस ये डिलीट के ऊपर एक से ज़्यादा डिलीट होता है, तो यहाँ पे राउट लिखने से वो एक से ज़्यादा, कल जाके मेरी एपीआई 100 एपीआई है, तो 100 एपीआई को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, डिलीट के अंदर 100 एपीआई है, तो डिलीट अंडरस्कोर फैकल्टी, डिलीट अंडरस्कोर स्टूडेंट, डिलीट अंडरस्कोर ऐसे आएगी, तो वो रिकॉग्नाइज राउट से होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं कॉपी करूँ इसको, उसके बाद हम लोग पेस्ट कर रहे हैं इसको, यहाँ पे डिलीट पे डिलीट करेंगे और ट्राई करते हैं, इसको पहले कैंसिल करना पड़ेगा। राइट, हमने डिलीट का ऐड किया है, तो सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल जे से क्या होगा, ये मेरा टर्मिनल दिखता है। ls cd server ls node index डॉट जेएस, हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ, मैं थंडर में जा रहा हूँ, डिलीट अंडरस्कोर फैकल्टी, तो हमारा एक एक्नॉलेजमेंट मिला ट्रू और 1, तो हम लोग चेक करेंगे फ्रंट एंड में कि डिलीट हुआ कि नहीं हुआ है। यस, आवर रिकॉर्ड इज, सेकंड रिकॉर्ड इज डिलीटेड, तो पूरा हमारा एक इंसर्ट अपडेट डिलीट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है यहाँ पे। और मैं अभी आपको पोस्टमैन में भी कैसे रन करना है, पोस्टमैन ऐसा होता है, तो पोस्टमैन में भी कैसे करना है वो भी मैं बताऊँ। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे, रिएक्ट जेएस में हम डेटा डिस्प्ले करेंगे। राइट, डेटा डिस्प्ले इन रिएक्ट जेएस, तो ये 30 मिनट में मैंने ये कवर किया है, जैसे एपीआई डेवलपमेंट्स 1 बाय 1। स्टूडेंट, इतना समझ में आया कि नहीं आया? हेलो हेलो स्टूडेंट, हेलो, प्लीज रिस्पॉन्स, हेलो हेलो, यस और नो? Yes, sir. हेलो
हेलो हेलो। Yes, sir. ओके, आपको समझ में आया ना इतना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो, राइट, तो प्लीज़ आस्क मी, सो मैं आई कैन एक्सप्लेन अगेन। Sir, update वाला. अपडेट में समझाऊँ? हाँ. ओके, तो ये अपडेट क्वेरी है। अपडेट में क्या है? अपडेट वन। अपडेट वन में हम लोग क्या कर रहे हैं? नॉर्मल हम लोग देखो, फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट अपडेट एसक्यूएल में कैसे करते हैं? अपडेट टेबल नेम, राइट, जैसे स्टूडेंट टेबल नेम, स्टूडेंट, ओके, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? सेट एफ नेम यानी फैकल्टी नेम, तो यहाँ पे हम लोग फैकल्टी का नाम XYZ और कोमा करके सैलरी देते हैं, राइट। सैलरी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 फॉर एग्जाम्पल, ओके। नेक्स्ट वेयर आईडी लेते हैं, आईडी इज इक्वल टू, राइट, फॉर एग्जांपल 1, तो 1 नंबर की आईडी पे ये डेटा हम लोग सेट करते हैं। ये हमारी क्वेरी रहती है। ये आपको एसक्यूएल क्वेरी तो पता है। सिलेक्ट क्वेरी के लिए हम लोग पता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, राइट, स्टूडेंट, ये तो पता है ना, स्टूडेंट, स्टूडेंट। और नीचे डिलीट क्वेरी के लिए ये है डिलीट स्टार फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, राइट, डिलीट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट या डिलीट स्टूडेंट, राइट। तो ये हमारी डिलीट क्वेरी है, ये हमारी अपडेट क्वेरी है। और हमारी इंसर्ट क्वेरी क्या है? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, यहाँ पे आईडी की वैल्यू होती है यानी 1, राइट, कोमा, यहाँ पे ABC कोमा सैलरी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल दिस इज़ अवर इंसर्ट क्वेरी, दिस इज़ अवर अपडेट क्वेरी। वही क्वेरी मैंने यहाँ पे यूज़ की है लेकिन मोंगोडीबी में है, राइट, ये क्वेरी। तो यहाँ पे मोंगोडीबी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? मोंगोडीबी के अंदर अपडेट, तो यहाँ पे अपडेट के लिए मैंने कौन सी आईडी, यहाँ पे ये आईडी ली, उसके अंदर वैल्यू कौन सी सेट करवाई, तो आगे लिखा है $सेट। तो $सेट मैंने लास्ट टाइम आपको जब मोंगोडीबी का सेशन लिया था उसमें मैंने समझाया था $सेट। तो कौन सी वैल्यू को सेट करना है? फैकल्टी नेम और सैलरी, फैकल्टी सैलरी। तो ये सेट होके यहाँ पे क्वेरी के अंदर ये मॉडल जो है, मॉडल यानी ये कहाँ पे मॉडल है हमारा? ये मॉडल यहाँ पे है, फैकल्टी का एक मॉडल है, राइट। तो ये मॉडल के अंदर ये मॉडल रिकॉग्नाइज होगा। तो ये मॉडल के अंदर फैकल्टी से फैकल्टी और सैलरी से सैलरी, ये मोंगोडीबी का पार्ट है। तो मोंगोडीबी ये स्कीमा को रीड करेगा और ये मॉडल स्कीमा को जाएगा और यहाँ पे मॉड्यूल्स। तो ये ऑटोमेटिकली ये मोंगोडीबी का एक फीचर्स है, फंक्शनलिटी है। तो मोंगोडीबी के जो सेव मेथड है, तो वो सेव मेथड या अपडेट मेथड वो ऑटोमेटिकली ये अपडेट वन मेथड है। तो आप देखो यहाँ पे अपडेट वन मेथड है। तो मोंगोडीबी में आप जाओ तो यहाँ पे लिखा होता है क्रूड ऑपरेशन, ऐसे करो क्रूड ऑपरेशन मोंगोडीबी, मोंगोडीबी नोड जीएस ऐसा लिखो तो आपको क्रूड ऑपरेशन भी मिल जाएंगे, राइट। तो देखो मैं क्रूड ऑपरेशन आपको बता रहा हूँ, ये मोंगोस के साथ भी आप कर सकते हो, राइट। तो ये अपडेट वाला सेशन जो मैंने अभी आपको बताया वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो इन अपडेट वन, राइट, हाउ टू अपडेट डॉक्यूमेंट यूजिंग अपडेट वन विथ एंड विदाउट अपसर्ट एज वेल एज अपडेट मैनी। तो ये एक पूरा ऑपरेशन है। नीचे जाओ, क्रिएट मल्टीपल डॉक्यूमेंट, ये रहा अपडेट वैल्यू। तो अपडेट बाय नेम, राइट, तो अपडेट ये जो है ना अपडेट क्वेरी है कलेक्शन की, अपडेट वन। तो अपडेट वन में ये पास किया है, राइट। यहाँ पे नेम ऑफ लिस्ट सेट यहाँ पे किया है।
तो ये लॉग में आपको डेटा दिखेगा भी, राइट। तो ये अपडेट 1 में मैंने पास किया नेम, यहाँ पे नेम ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे सेट करेगा अपडेटेड लिस्ट। तो ये अपडेट क्वेरी है। तो आपको मैंने बहुत सिंपल समझाया है, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा इसकी जगह से, राइट। यहाँ पे भी दूसरा है, यहाँ पे भी क्रूड ऑपरेशन है। यहाँ पे भी स्कीमा डेवलप किया, जैसे मैंने बनाया वैसा ही है, सेम, राइट। यहाँ पे अपडेट है, हमने जो अपडेट क्वेरी की वो इस तरह से अपडेटेड बाय आईडी। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आई डी, यहाँ पे आईडी होगा तो आईडी में से जो भी नेम होगा वो अपडेट हो जाएगा, राइट। तो एक अपडेट वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, फाइंड लेटेस्ट, यहाँ पे ओके, इससे अच्छा तो मेरा है, राइट। तो ये अपडेट वाला कॉन्सेप्ट हमने कवर किया है। ओके स्टूडेंट, हम लोग ये मोंगोडीबी यहाँ पे देखते हैं। यहाँ से मैं डेटा ऐड कर रहा हूँ 300 कोलन ऐड अंडरस्कोर फैकल्टी, ऐड अंडरस्कोर फैकल्टी फॉर एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे मेरी पोस्ट एपीआई है, राइट। डेटा यहाँ पे ही है, डेटा हमारा ऑलरेडी इसके अंदर इंसर्ट है, आयुष, राइट। आयुष और 100, तो मैं आयुष की जगह पे और एक डेटा लेता हूँ, निधि, ओके। और वैल्यू है यहाँ पे 200, सेव, नोड.js रिस्टार्ट कर रहे हैं, ओके। यहाँ से हम लोग फायर करते हैं। ओके, मुझे आगे लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट, ऐड फैकल्टी, ओके। हमारा सर्वर जो है 3001 पे है, ओके। तो मैंने पोर्ट नंबर अलग लिया है, तो 1 पोर्ट नंबर मैटर कर रहा है यहाँ पे, ओके। डेटा यहाँ पे आपको जेसन फॉर्मेट दिख रहा है, निधि इज एडेड, ओके। नाउ वी कैन चेक हियर, ओके। तो हमारे पास ये 3 वैल्यू आ गई। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ओके। ये हमें मोंगोडीबी में हमने टेस्ट कर लिया, अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, ये सर्वर वाला पार्ट ओके हो गया। फ्रंट एंड में जाएंगे, फ्रंट एंड में हमारे पास रिएक्ट एप्लीकेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे जाके ls फ्रंट एंड है हमारा, तो यहाँ पे एक नई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ, npx क्रिएट अंडरस्कोर रिएक्ट हाइफन ऐप, ऐप का नाम कुछ भी दे देते हैं। अभी ऐप में अभी डॉट लिख रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक वो क्रिएट हो जाएगी इसके अंदर, फ्रंट एंड के अंदर, ओके। तो देखते हैं ये डॉट लिखने से क्या हो रहा है, ओके। देखो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुआ, यानी मैंने ऑलरेडी फोल्डर का नाम लिख दिया है, तो मुझे फोल्डर का नाम लिखना नहीं है, तो इसीलिए मैंने डॉट दिया। ये थोड़ा एडवांस लेवल का मैं बता रहा हूँ थोड़ा, ये आपने किसी, राइट, ये आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, लेकिन हम लोग कंपनी में ऐसे यूज़ करते हैं, पहले फोल्डर का नाम दे देते तो बाकी का ऑटोमेटिक यहाँ पे मिल जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना, हेलो, थोड़ा बीच में बोलते रहना, हेलो। हम लोग अभी गेट जो डेटा हमें मिला है,
राइट। यस सर। मोंगोडीबी में ये डेटा हमें मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये डेटा हमें डिस्प्ले करेंगे अभी फ्रंट एंड में डिस्प्ले रिएक्ट में। बाद में थोड़ा डेकोरेटिव हम बनाएंगे उसको। पहले हम नॉर्मली रिएक्ट में कैसे डिस्प्ले करना है वो रिएक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, रिएक्ट के अंदर डेटा कैसे लाना है बैकएंड से, वो हम लोग एपीआई कॉल कैसे, गेट एपीआई कॉल करके बताता हूँ। मेरे पास टाइम अभी कम है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अभी 15 मिनट, मैं 20 to 25 मिनट में लूँगा आपकी। ओके, all session are all session is in recording. I will provide this recording session to you. Okay. uh, आपको पता है रिएक्ट की एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करना है, राइट। यहाँ पे रिएक्ट मैं अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो क्या क्या पैकेज साथ में, रिएक्ट डोम, रिएक्ट स्क्रिप्ट एंड CRA टेम्पलेट्स, वो सब इंस्टॉल हो रहा है पैरेलली, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे जो वीडियो है ना उसको, now our application is installed, right। now see how to start this application, npx start या npm start लिख सकते हो, npm start। आप लोग यान भी यूज़ कर सकते हो, यान करके भी आता है, यान एक थोड़ा अलग तरह का है, npm और यान। तो यान कैसे यूज़ करना है वो हम लोग देखेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में जब अगेन सेशन होगा तब, राइट। अभी मैं आपको सिंपल एक हमारा रिएक्ट के अंदर डिस्प्ले डेटा जो भी हमने बैकएंड में अभी एपीआई डेवलप की, गेट एपीआई में करके बताता हूँ आपको। बाद में हम लोग पोस्ट अपडेट फास्ट देखेंगे। देखो रिएक्ट एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, रिएक्ट हमारी एप्लीकेशन ओपन हो रही है, बैकएंड में हमारा 302 चालू ही है। ओके, ये ओपन हो रहा है किस में, ओके, रिएक्ट एप्लीकेशन इज वर्किंग, राइट। इतना तो आता है ना रिएक्ट कैसे चालू करना है। हेलो स्टूडेंट के Yes, टाइम, sir. ओके, रिएक्ट तो चालू करने आता है ना यस सर। सबको। हेलो, यस और नो। Sir. सर। ओके, दोनों एप्लीकेशन पैरेलली साइड बाय साइड मैंने ले लिया है। ओके, यहाँ पे हमारी एपीआई है और यहाँ पे हमारा रिएक्ट है। तो रिएक्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी एपीआई सोर्स में जाना है, सोर्स में app.json, और इंडेक्स के अंदर हमारा डिज़ाइन होता है। इसमें आप जावास्क्रिप्ट बेसिक होती है, index.js, इसके अंदर आप लोग आपकी index.js के अंदर, लेकिन हम लोग ऐप index.js के अंदर ऐप कॉल किया होता है। यहाँ पे ऐप देखो, यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड है, अभी सभी एप्लीकेशन स्ट्रिक्ट मोड में ही ओपन वर्क हो रही है, राइट। तो ये हमारे मेन जेएस फाइल है, ये हमारी मेन जेएस फाइल है, लेकिन हम लोग चेंज करेंगे ऐप.js। ऐप में जो भी डिज़ाइन है वो यहाँ पे ये CSS में पड़ी होती है। पब्लिक फोल्डर में हम लोग कोई भी स्टैटिक फाइल या कुछ भी रखना चाहते हैं वो सब रख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे हम लोग इसके अंदर कंपोनेंट भी डेवलप कर सकते हैं, वो बाद में करेंगे, लेकिन हम लोग ऐप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अभी पूरा डिलीट कर देंगे, राइट। पूरा मैं ये डिलीट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे ये सेगमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, सेगमेंट आपको पता होगा सेगमेंट क्या है, H1 हेलो हेलो डॉक्टर रौनक। ओके ओके, मैं सेव करके वो ऑटोमेटिक वहाँ पे वो एप्लीकेशन दिखेगी, राइट। मेरा पूरा मैंने रिएक्ट में से निकाल दिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, हमारा फ्रंट एंड का डेटा यहाँ पे लोड होना चाहिए, राइट। मेरा इंटेंशन क्या है, फ्रंट एंड का डेटा यहाँ पे लोड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एपीआई को कॉल करूँ। ओके, एपीआई को कॉल कैसे करना है उसका मैंने एक पूरा एक बना के रखा है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारा टाइम थोड़ा रिड्यूस होगा। ओके, उससे पहले हम लोग ये डेटा ये जो है रिएक्ट, ओके, फर्स्ट जो पार्ट है हमारा, ये फर्स्ट पार्ट जो है कांस्टेंट एक हमारा पोस्ट डेटा, डेटा सेट डेटा,
ओके, तो यहाँ पे रिएक्ट, यहाँ पे एरर आ रही है, तो रिएक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये लोगो अभी हमारे पास है नहीं, तो इंपोर्ट क्या करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट, एरर निकल जाएगी, एरर रिएक्ट फ्रॉम, ओके ओके डन। तो ये रिएक्ट वाली एरर हमारी निकल गई। देखो ये रिएक्ट की हम लोग यूज़ केस यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ केस को कैसे यूज़ करना है वो भी हम लोग कोमा कर्ली ब्रैकेट के अंदर यूज़ स्टेट, यूज़ स्टेट हम लोग क्या क्यों यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पे यूज़ स्टेट आ गया, यहाँ पे यूज़ स्टेट, ओके यूज़ इफेक्ट भी हम लोग ले लेते हैं पहले, यूज़ इफेक्ट, ओके हमें क्या और इंस्टॉल करना है, एक्शियम, मुझे कॉल क्या करना है एक्शियम, तो यहाँ पे मुझे कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, एक्शियम, एक्शियम यूज़ करना है, यहाँ पे मैंने सेट डेटा यूज़ किया है, यहाँ पे मैं सेट डेटा, राइट डेटा, जब भी डेटा नल होगा तो नल होना ही होना चाहिए, तो नल पास करेगा, ओके। और मेन अभी एरर आ रहा है यहाँ पे, एक्शियम की वजह से एरर आ रहा है, एक्शियम ये एपीआई को कॉल करने के लिए npm इंस्टॉल एक्सियोस एक्सियोस राइट, एक्सियोस हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, मुझे डेटा बैकएंड से फ्रंट एंड में लाना है, ओके ओके एक्सियोस इंस्टॉल हो गया, तो एक्सियोस को भी हमने इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट एक्सियोस, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ओके डन, एक्सियोस इंस्टॉल हो गया, एक्सियोस को हमने इंपोर्ट कर लिया, तो सभी एरर हमारे निकल गए। ये पहले हमने एक हुक बनाया है, हुक का मतलब ये डेटा जो है, राइट ये यूज स्टेट है, और हमारा यूज इफेक्ट के अंदर हम जो कुछ डायनामिक, राइट तो वो हमारा वो पार्ट आ गया, यहाँ पे हमें डेटा जो नल मिले, डेटा नल होगा, राइट डेटा इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो वो जब नल होगा तो क्या रिटर्न करेगा, नल, राइट नल नहीं होना चाहिए, तो नल नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ के आगे जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पे सेट डेटा, तो सेट जो भी रिस्पांस मिलेगा हमें वो सेट डेटा के अंदर आना चाहिए, ओके पहले हम लोग चेक करेंगे, npm स्टार्ट करके, npm स्टार्ट, ओके यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे हमें इसके अंदर लॉग में डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कंसोल में जाएंगे, ओके यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, राइट कॉर्स CORS की एरर आई हमें, तो CORS हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा बैकएंड में, चॉर्स इसको कॉर्ड्स कॉर्ड्स एरर बोलते हैं, कॉर्ड्स एरर, तो बैकएंड में हमें क्या करना पड़ेगा, कॉर्ड्स ऐड करना पड़ेगा, तो बैकएंड में ये हमारा बैकएंड है, बैकएंड में जाओ और लिखो npm, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, ये सबको आएगी, राइट जो भी किसी भी एपीआई नोड जेएस को किसी भी एपीआई के फ्रंट एंड से साइट कनेक्ट करोगे तब ये एरर आएगी ही आएगी, राइट उसके लिए हम लोग npm ICORS, क्यों नहीं हो रहा है,
ओके ls cd सर्वर npm आई इंस्टॉल का शॉर्ट फॉर्म है आई cors क्रॉस ओरिजिन प्रॉब्लम। ओके ये क्रॉस ओरिजिन का प्रॉब्लम है, हमें ऊपर जाना है राइट। यहाँ पे ऐप डॉट मैंने लिखा ही है रिक्वायर्ड, ये दोनों लाइन ज़रूरी है। ओके ये CORS रिक्वायर्ड मैंने जो इंस्टॉल किया वो रिक्वायर्ड किया और उसको ऐप डॉट यूज़ कर दिया राइट। तो ये हमारा कॉस्ट और का जो एरर है CORS एरर जो आ रही है वो हमें नहीं आएगी अभी। वापिस हमें क्या करना पड़ेगा, Node.js स्टार्ट करना यानी सर्वर स्टार्ट करना index.js। कई लोग क्या लिखते हैं index.js की जगह पे server.js भी लिखते हैं, आपको जो भी सूटेबल है वो आप लिख सकते हो राइट। अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे चेक करेंगे। ओके हमारे डेटा जो है ना वो बैकएंड से फ्रंट एंड में आ गए राइट। यहाँ पे देखो ये हमारे डेटा जो बैकएंड में पड़े हुए हैं वो यहाँ पे आ गए, राम और राम राइट, दो डेटा हमें मिल रहे हैं। राम डेटा कौन सा डेटा है, राम आयुष और निधि है यहाँ पे। ओके राम आयुष और निधि। ओके फ्रंट एंड में जाके हम लोग चेक करेंगे ये कौन सा थोड़ा एक टेक्निकली आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब हम लोग कॉन्स्ट लिखते हैं कॉन्स्ट राइट, डेटा कोमा सेट डेटा इक्वल टू रिएक्ट डॉट यूज स्टेट ओके और ब्रैकेट में यहाँ पे ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे हम लोग नल पास करेंगे कोमा सेमीकोलन और नल। अभी कुछ है नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे होना चाहिए था वो। ओके नेक्स्ट हमें करना पड़ेगा यहाँ पे रिस्पॉन्स हमारा फ्रंट एंड में मैंने यहाँ पर स्क्वायर इसको मैं निकाल देता हूँ, चेक करते हैं। ओके फ्रंट एंड में कौन कौन से डेटा दिख रहा है। ओके 3 वैल्यूज़ है राइट। पहली जो वैल्यू है राम वाली और सेकंड जो वैल्यू है आयुष वाला और थर्ड जो है राइट निधि। तो मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड प्रिंट किया था तो ये हमें डेटा दिख रहा है। डेटा हमारा कौन से मोड में आ रहा है, एरे में दिख रहा है राइट app.js में। अभी मुझे ये डेटा यहाँ पे UI में चाहिए, तो UI के अंदर चाहिए तब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो UI के अंदर मुझे चाहिए तो मुझे है ना अभी एक टेबल फॉर्म में चाहिए। विदाउट टेबल फॉर्म में भी डेटा डिस्प्ले हो सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, विदाउट टेबल फॉर्म में हम लोग सिर्फ उसको एक मिनट यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं।
यहाँ पे इसके नीचे मैं एंटर कर रहा हूँ और डेटा को पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, पोस्ट नहीं है हमारा डेटा, कौन सा है ये, पोस्ट की जगह पे ये डेटा है, तो डेटा के अंदर डेटा चाहिए, डेटा और मल्टीपल डेटा है, मैप करना है, मैप आइटम। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक div टैग लेंगे, div टैग, इसको भी div टैग, और यहाँ पे h1, सपोज इसको मैं h2, h3, h1, h3। ओके, सेव, मेरी वैल्यू फ्रंट एंड में प्रिंट हो जाएगी। ओके, राम आयुष डेटा आ गए, मुझे सेंटर में चाहिए डेटा सब, तो मैं यहाँ पे हमारा जो सेगमेंट है ना उसके ऊपर एक सेंटर टैग ऐड करूँगा, सेंटर, राइट, और उसको क्लोजिंग टैग के टाइम पे हमारा सेगमेंट के नीचे क्लोजिंग टैग, राइट, सेंटर, डेटा सेंटर में आ गए, देखो राम, राइट, आयुष। उसकी जगह पे मुझे क्या चाहिए, मुझे टेबुलर फॉर्म में चाहिए, तो टेबल फॉर्म में मैं यूज़ करूँगा, राइट, कोई भी एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, राइट, टेबल रिएक्ट जेएस, रिएक्ट रिस्पॉन्सिव टेबल, रिस्पॉन्सिव रिएक्ट जेएस। ओके, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मैं एक ओके ये ट्राई करता हूँ, इसको मुझे मेरे अंदर चाहिए ये वाला टेबल, मैं, राइट, तो उसके लिए कौन सी यूज़ होनी चाहिए, ये वाले के लिए npm कौन सा यूज़ होना चाहिए। ओके, ये वाला हम लोग यूज़ करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल मैं ये यूज़ करूँ, राइट, रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो पहले मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा कौन सा, रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है इतने तक, वैल्यू यहाँ पर आई। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे कांस्टेंट एक बनाया, हुकिंग किया, ये हुक डेटा यहाँ पे हुक यहाँ पे हुआ, नल वो जो उसके अंदर कुछ नहीं होगा तो नल रिटर्न करेगा, होगा तो यहाँ पे डेटा मल्टीपल वैल, यहाँ पे आइटम डॉट अंडरस्कोर आई डी, यहाँ पे है हमारा आईडी, ये आइटम डॉट फैकल्टी है, कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है इसको, राइट, HTML के बीच में, HTML हमारा पूरा रिटर्न स्टेटमेंट में होगा, रिटर्न ये किसका है, ऐप, ये फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट है। अभी नीचे एक्सपोर्ट ऐप किया हुआ है यहाँ पे, और हम लोग इसके अलावा एक और भी पैकेज में भी बना सकते हैं, अलग एक का, राइट, अलग इसके अंदर भी बना सकते हैं, एक नया पेज भी ले सकते हैं, राइट, यहाँ पे आ जाओ, एक पेज बनाओ, फैकल्टी डॉट JSX करके भी बना सकते हो, राइट, फैकल्टी डॉट JSX में भी बना सकते हो आप लोग, राइट, सिंपल। तो यहाँ पे फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे, फंक्शन फैकल्टी, राइट, कर्ली ब्रैकेट, एंटर, और यहाँ पे रिएक्ट तो यूज़ करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे लास्ट जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप की जगह पे यहाँ पे लिख दो फंक्शन, तो ये एरर निकल जाएगी, फैकल्टी। ओके, रिएक्ट अंदर यूज़ किया नहीं है, ओके, मुझे ये सब निकाल के, राइट, इसके अंदर रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न, H1 हेलो। ओके, ये फैकल्टी को मैं कॉल भी कर सकता हूँ इसके नीचे, फैकल्टी। ओके, जैसे ही फैकल्टी में लिखूँगा ऊपर ऑटोमेटिकली फैकल्टी ऐड हो जाएगा, देखो। ओके,
अभी हमारा हमने वो रन नहीं किया है। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तो एक मैंने अलग पेज बनाया, इसको हम लोग टेबल ऐड कर देंगे npm इंस्टॉल react हाइफन बूटस्ट्रैप 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 ऐड करेंगे तो बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिकली रिएक्ट जेएस का बूटस्ट्रैप है होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके डन। अभी वो जो कोड है ना वो सेम कोड हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ये वाला राइट। सिंपल ये हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। चलेगा, ये वाला कॉपी पेस्ट करेंगे तो कौन सा रिस्पॉन्स मिलेगा ऊपर हो। हमें कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे डार्क चाहिए, डार्क वाला ले लेते हैं। ओके, तो मैं सिंपल कहाँ पे जाऊँगा, ये डार्क वाला जो पोर्शन है ना ऐप के अंदर, ऐप के अंदर नहीं, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ। ये फंक्शन के अंदर इंपोर्ट करते हैं। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बोलना। हेलो, यहाँ पे डार्क के अंदर टेबल प्रॉप इसको पी करेंगे ना हम लोग, फॉर्मेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, मेरे अंदर सेटिंग्स किया हुआ है। ओके स्टूडेंट, ये अब हम रन करेंगे तो फैकल्टी लास्ट में है, तो लास्ट में वो होना चाहिए। npm स्टार्ट करेंगे वापस। अभी हमें टेबल फार्मूला ऐड किया है। npm स्टार्ट हो रहा है। ये स्टूडेंट आपको पता चल रहा है? हेलो, देखो नीचे वैल्यू आ गई, राइट, जितनी वैल्यू थी वो आ गई। ओके, मुझे डेटा इसके अंदर चाहिए, यहाँ पे भी डेटा है और यहाँ पे भी डेटा है, राइट। फैकल्टी का डेटा डिस्प्ले हुआ लेकिन डार्क मोड क्यों नहीं प्रिंट हुआ। ओके देखते हैं। नीचे टेबुलर टेबल भी कॉल हुआ, यानी दो, एक अलग कंपोनेंट भी कॉल हुआ, दूसरा कंपोनेंट हमारा जो है यहाँ पे कॉल हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, राइट। यहाँ पे ये CSS के अंदर क्या है, वेरिएंट डार्क 1। हेलो, हेलो गुलजीत, आई विल कॉल यू वन।
यस स्टूडेंट, सॉरी टू इंटरप्ट यू। ओके, तो डेटा हमें कि इसमें चाहिए, ये टेबल में चाहिए, इसके अंदर मुझे डेटा चाहिए। तो सेम जो मेरी जो एपीआई है उसको मैं यहाँ से कॉपी करूँ, राइट, एपीआई को, ये एपीआई जो डेटा है इतना कॉपी करके दूसरे पेज पे मैं ले रहा हूँ, राइट। यहाँ पे समझो, यहाँ पे मुझे वो डेटा, सेम डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मुझे यहाँ पे एक्शियम भी इंपोर्ट करना पड़ा है। इंपोर्ट एक्शियम, कॉपी करके एक्शियम, तो एक्शियम की एरर निकल गई और यहाँ पे ये डेटा कॉपी हो गया। अभी सिंपल क्या करना है, मुझे ये कॉपी करके हमारा जो टेबल है ना उसके अंदर प्रिंट करना है, टेबल के अंदर ये वाला प्रिंट करना है, राइट। अभी जो टी आर जो है ना, इतना टी आर ये कॉपी करके यहाँ पे लेना है, इसके अंदर टी आर के अंदर टी आर, राइट, टी आर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये डाल देंगे और ये जो है कंट्रोल एक्स, फैकल्टी के अंदर फैकल्टी डाल देंगे, ओके। और आईडी को भी यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट के थ्रू आईडी को भी प्रिंट कर देते हैं, ओके। तो इतना पोर्शन मैंने डिलीट कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे ये लाइन डिलीट कर रहा हूँ, 2 ही रिकॉर्ड चाहिए और बाकी का कुछ काम का नहीं है मुझे। टीडी, तो ये पूरा डायनामिक बन गया, देखो। अभी हम लोग चेक करेंगे डेटा डायनामिक आया कि नहीं आया। सी डेटा इज अवर कमिंग, ओके, तो डेटा इज कमिंग डायनामिकली। तो यहाँ पे ये अभी पोर्शन की ज़रूरत नहीं है मुझे, यहाँ पे मैं ऐप में जाऊँ, राइट, तो इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं उसको कमेंट भी कर सकता हूँ, ओके। कंट्रोल सी और चेक करते हैं, तो डेटा मेरा फैकल्टी का यहाँ पे आ गया, ओके। तो आज के दिन मैं इतना ही रखूँगा स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट्स है तो बोल सकते हो। मैंने दूसरे पेज में से भी कॉल करके JSX फाइल क्रिएट की, JSX फाइल के अंदर मैंने एक टेबल का कनेक्ट किया, टेबल बूटस्ट्रैप टेबल, और बूटस्ट्रैप टेबल में से डेटा डिस्प्ले किया यहाँ पे, राइट। वो ब्लैक नहीं है, वो बाद में देख लेंगे, राइट। अभी मेरा कॉल चालू हो गया है, ओके स्टूडेंट्स। कोई इश्यू है तो बोलो। डेटा हम लोग गेट कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म के अंदर कैसे फॉर्म बनाना है, फॉर्म बना के उसके अंदर डेटा कैसे सबमिट करना है, सबमिट करने के डेटा टेबल में कैसे ड्रॉप होना चाहिए, वो हम लोग करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। मैम हेलो, हाँ सर, इट इज़ ओके नाउ, हाँ सर, ओके ओके। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स। किसी को भी डाउट है, दिस इज आवर फाइनल सेम टाइमिंग ना? same timing, this data is our retrieving here, right, it is not small task। हाँ स्टूडेंट, ये छोटा टास्क नहीं है, हमने बहुत कुछ अभी देखा है, किया है अभी, राइट। अभी हमारा ये अननेसेसरी डेटा क्यों डिस्प्ले हो रहा है पीछे, ओके ये है इसीलिए, ओके। देखो, राइट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हो आप लोग, बॉर्डर भी दे सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट, बॉर्डर उसके अंदर स्टाइल के अंदर बॉर्डर भी आएगी, लेकिन अभी प्रिंट नहीं हो रहा, देख लेंगे, ओके। एक्चुअली बॉर्डर है लेकिन वाइट कलर में है यहाँ पे, एक मिनट, टेबल बॉर्डर कलर स्टाइल रिएक्ट, ओके।
हेलो स्टूडेंट, वो हम लोग देख लेंगे ये बॉर्डर टेबल टेबल सर यस इसकी जेब फाइल मिलेगी वो बैकएंड की यस यस content। हाँ हाँ मैं पूरा दे दूंगा राइट और वो चैनल का लिंक भी भेज दोगे बॉर्डर यूट्यूब वाले आपके है ना वो यस कल आपका एंगुलर का हुआ था सेशन राइट? ओके ये अभी अलग टाइप से है, ये बूटस्ट्रैप है इसीलिए नई बॉर्डर दिख रही है। मैं आपको बाद में बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो थैंक यू सर। ओके नाउ आई कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग।